السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر ایس نالج۔ ناظرین، سال 1999 دسمبر کے مہینے میں لاہور پولیس کو ایک ایسا خط ملتا ہے جو ان کو حیران کر دیتا ہے۔ اس خط میں ایک شخص یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے 100 بچوں کا ریپ کر کے ان کو قتل کیا ہے۔ پولیس جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ درندہ نما شخص بچوں کو مار کے ان کے ٹکڑے کر کے ان کو تیزاب میں ڈال دیتا تھا۔ آخر کار پھر پولیس اس شخص جاوید اقبال کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو سزائے موت کی سزا دیتی ہے، پر اس سے پہلے کہ اس کی سزا تکمیل پاتی اس سے پہلے ہی وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اسی طرح انڈیا میں ایک شخص چندرکانت جہان نے پوری دنیا کو پیچھے لگایا ہوا تھا، جو وہ دن دہاڑے بہار جیل کے بعد ان لوگوں کے جسم کے ٹکڑے رکھ دیتا تھا جن کو وہ بے دردی سے مارتا تھا۔ ہر بوٹی کے ساتھ وہ ایک لیٹر رکھتا تھا۔ پولیس کو گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ اسی طرح ناظرین، ایک شخص ٹینڈ کیزلز نے 17 سال تک امریکہ سیکیورٹی ایجنسی کو اپنے آگے لگا کر رکھا تھا، جس کے دوران اس نے کئی بم بلاسٹ بھی کیے، جس کی وجہ سے 3 لوگوں کی جان بھی چلی گئی۔ کمال کی بات یہ تھی کہ ٹینڈ کیزل وہ کمال کا ذہین ترین شخص تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 170 پلس تھا۔ اس نے اوورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور یونیورسٹی آف مسیچیویٹس میں میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی بھی کیا، اور اس کے بعد یو سی برگ میں میتھمیٹکس پڑھانا شروع کیا، لیکن 2 سال میں ہی اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور کہیں دور ریویڈنس کے ایک علاقے کیمن میں رہنے لگا۔ ٹینڈ کا ٹارگٹ زیادہ تر یونیورسٹی اور ایئر لائن ہوتی تھی۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب اور حیرت زدہ تھی، جو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ ناظرین، آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ سائیکوپیتھ ہو کر اس طرح کے عجیب قتل کر دیتے ہیں اپنے ہی جاننے والوں کا، کبھی کبھی اپنے بہن بھائی کا یا اپنے ماں باپ کا، یہاں تک اپنے بیوی بچوں کا؟ کیوں کوئی بھی شخص آفینڈر اور سیریل کلر بن جاتا ہے؟ کیوں آپ کو ایک دم نارمل رہنے والے شخص اندر سے اس طرح ٹویسٹڈ اور کمپلیکس ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس الجھے ہوئے مسئلے کو، اور ویڈیو پورا دیکھ کر آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی فیملی میں یا ارد گرد کوئی ایسا ممبر ہے جو اس طرح نفسیات کا مسئلہ ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کے لیے تو فری ہے، پر اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آر ایس نالج اور میں ہوں آج آپ کا ہوسٹ سمیع اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، تاج نیتھن ایک فورکسن سائیکیٹرسٹ ہے جنہوں نے بہت ہی ڈیپ کتاب لکھی جس کا نام ڈینجرس مائنڈز ہے۔ اس کتاب میں 10 ایسے لوگوں کو سرچ کیا جو سیکس آفینڈر اور سائیکوپیتھ یا سیریل کلر ہیں۔ ان میں سے سب لوگ الگ الگ طرح کے سائیکولوجسٹ ڈس آرڈر کا شکار ہیں، جیسے کہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر، سکیزوفرینیا، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، بائی پولر ڈس آرڈر، اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر اور پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ ناظرین، اگلے کچھ منٹ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں، کیونکہ ہم انہی نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے اور کس طرح یہ ڈس آرڈر ایک عام انسان کو سیریل کلر بنا دیتے ہیں، اسی ویڈیو میں آج جانیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایک ایسے ڈس آرڈرز کے ساتھ، کہ ایک ایسی بیماری کے ساتھ جو سب سے زیادہ کمپلیکس اور مس انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ وہ نفسیاتی بیماری ہے، اگر ہمارے کسی شخص کو ہو جاتی ہے تو زیادہ تر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس پر جنات کا حملہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی سایہ ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس بیماری کا نام سکیزوفرینیا ہے۔ سکیزوفرینیا ناظرین ایک ایسا سائیکولوجسٹ ڈس آرڈر ہے جس سے اس شخص کو ریئر اور ان ریئر یعنی کہ موجودہ اور غیر موجودہ میں فرق ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو سوچنے سمجھنے کی خاصیت بالکل صفر یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ انفیکٹ جو سکیزوفرینیا کا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ڈسٹربر ان تھاٹ اینڈ اٹینشن، اس میں انسان کے تھاٹ کا کوئی، اس کی گفتگو کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ جب بھی وہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو ایک سے دوسرے تیسرے ٹاپک پر ایسے چلا جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ اور توڑ پھوڑ کیے بغیر۔
इस बात का अंदाजा आपको इस पैराग्राफ को पढ़ कर भी हो जाएगा जो एक स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज की स्पीच है। ये इंग्लिश में है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। अगर चीजें ज़राअत के गिर्द गर्दिश के हवाले से तब्दील हो जाती हैं और हर चीज वक्त हो जाता है, मैं पिछली दस्तावेज के हवाला दे रहा हूँ, वो जब मैंने कोई रिमार्क्स दिए जो हक़ाइक़ को भी जान पड़ताल करते थे। और एक और बात जो मेरी बेटी से ताल्लुक़ रखती है, इसका नीचे से कान उड़ा हुआ है। मासियात, फर्क, सब्सिडीज, ओजोन, बिल्डिंग, बॉन्ड, कौमी स्टॉक, मौसम, तजारत और हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी तोड़ फोड़ में इन मसनूआत में दूध, शरबत गैर इस्तेमाल शुदा और मना है। तमाम साबका रेस्टोरेंट का हक़ाइक़ का तयन नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, साइकोलॉजिस्ट की ज़बान में इसको कहते हैं वर्ल्ड साइड। ये इतना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के ज़्यादातर मरीज की उम्र 15 से 25 साल, ये बहुत नौजवान लोग होते हैं। और जब कोई भी बंदा इस तरह बातचीत करता है तो अनफॉर्चुनेटली इसको पागल कहकर मजाक उड़ाया जाता है। नाज़रीन, जब दूसरी बड़ी निशानी स्किज़ोफ्रेनिया की है वो हैलुसिनेशन है। ये वो निशानी है जिसको देखकर लोग कहते हैं इस पर कोई जिन या साया है। हैलुसिनेशन असल में वो चीज रहती है जो रियलिटी में मौजूद नहीं होती, लेकिन वो शख्स जो इस बीमारी का सामना कर रहा है उसको सुनाई देती है। हैलुसिनेशन भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि विजुअल हैलुसिनेशन। स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज आपको अक्सर ये बोलेगा कि ये देखो सामने कोई शख्स बैठा हुआ है या कोई बिल्ली जा रही है, जबकि इसके सामने कोई भी मौजूद नहीं होता। एक और तरह की भी हैलुसिनेशन होती है जिसको कहते हैं ऑडिटरी हैलुसिनेशन। इसमें स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज को आवाजें सुनाई देती हैं, इसके दिमाग के अंदर और दिमाग के बाहर। इसको लगता है कि कोई शख्स इससे बातें कर रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी मिसाल आप इस वीडियो में लेकर समझ सकते हैं, जिसको एक साइकियाट्रिस्ट एक ऐसे मरीज के साथ बात कर रहा है जो ऑडिटरी हैलुसिनेशन का शिकार। So from that, do I understand that the voices talk to one another? Right. Are they male or female? Male. Men. And where do the voices appear to come from? Different places, but around me. So Usually where I can't see. somewhere outside in the room where you're not able to see anybody? Okay. Okay. Do they stop you from doing anything? If they tell me not to go out, I don't go out. Okay. Do they ever tell you to do anything else that you wouldn't normally do or that you feel you shouldn't do? बस सुना है आपने दोस्तों कि किस तरह वो औरत बोल रही थी कि उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं कि दिमाग के अंदर, जिसमें एक आवाज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक और बहुत अहम मसला जो ऑडिटरी हैलुसिनेशन के साथ ये है कि जिन लोगों को ये ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं वो अक्सर औकात इनको तस्लीम कर लेते हैं और वो इन आवाजों पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और आखिर में वो कोई ऐसा जुर्म कर बैठते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, आपने अखबारों और न्यूज चैनल पर भी देखा होगा कि ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि एक शख्स ने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया, अपनी बीवी बच्चों को मार दिया, अपने माँ बाप को मार दिया। तरह के स्किज़ोफ्रेनिया को कहते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। जब इनसे पूछा जाता है ऐसा क्यों किया तो इनके पास कोई ठोस बात नहीं होती, फिर वो सिर्फ ये कह देते हैं कि उनको किसी ने ऐसा करने को कहा था। जैसा कि वेरी डेस फैमिली में हुआ जिसमें एक शख्स ने अपने 11 फैमिली मेंबर को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह इन पेशेंट को ऑडिटरी हैलुसिनेशन भी होती है कि हर वक्त इनको बू आती रहती है, कभी गोश्त की बू आती है, कभी यूरिन की बू आती है। ऐसे टाइटैनिक हैलुसिनेशन होती है जिनमें इनको लगता है कि हर वक्त इनके हाथ पर कोई चीज चल रही होती है, इसलिए इसको बहुत खतरनाक बीमारी कहते हैं। इसलिए कि स्किज़ोफ्रेनिया में मेन वजह बनती है बिहाइंड द मेकअप साइकोपैथ, जैसे कि सीरियल किलर, साइकोपैथ, सेक्स ऑफेंडर एक और दिमागी बीमारी का शिकार होते हैं जिसको कहते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर, यानी कि फोकस बिलीव। इस तरह के लोग ऐसी चीजों पर बिलीव रखते हैं जिनका असलियत या रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर वो इस तरह के लोग समझते हैं कि वो हिटलर है, बाराक ओबामा है, शाहिद अफरीदी है, इमरान खान है, जनाउज बिल्ला वो कोई फरिश्ता है। इसके अलावा डिल्यूजनल डिसऑर्डर में एक और अजीब सी बात होती है जिसको कहते हैं थॉट ब्रॉडकास्ट। ऐसे लोग समझते हैं कि
कि वो जो सोच रहे हैं वो लोगों तक ब्रॉडकास्ट हो रही है, मतलब कि वह उनकी सोच को सुन सकते हैं। इसलिए उनको हर वक्त डर लगा रहता है कि लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी सोच को लोगों तक पहुंच रही है। ऐसा ही एक और डिल्यूजनल होता है जिसको कहते हैं डिल्यूजनल ऑफ परसिक्यूशन। ऐसे लोगों को हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई उनको मार देना चाहता है, जहाँ तक कि उसके दोस्त, यार या उसके फैमिली मेंबर उसको जहर देकर या किसी भी तरीके से मार देना चाहते हैं। इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कोई ना कोई इनके बारे में गलत बातें कर रहा है। ये बात उनको इतना तंग करती है तो वो ना चाहते हुए भी सीरियल किलर बन जाते हैं या सेक्स ऑफेंडर बनकर सामने आते हैं। इस तरह देखने में आया है कि इस तरह के डेंजरस माइंड लोग इस तरह के अजीब क्राइम कर देते हैं और वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी शिकार हो जाते हैं, जिसमें इनका बिहेवियर ऐसे होता है कि वो लोगों से दूर भागते हैं, प्रोग्राम वगैरह में जाने से इख्तिलाफ करते हैं और अकेला अपने साथ रहना पसंद करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, अपनी सोच में डूबे रहते हैं। इसी डिसऑर्डर को इंट्रोवर्ट से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले शख्स बहुत ही कैलिस होते हैं। नाज़रीन, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक वजह नजर आती है साइकोपैथ बिहेवियर के पीछे। इस तरह के लोग मूड पर होते हैं, कभी ज्यादा खुश होने लग पाते हैं और क्या क्या लगाते हैं, आपको लगेगा कि ये बहुत खुश है, और कभी इतने उदास हो जाएंगे कि इतने डिप्रेस हो जाएंगे कि रोना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग खुद पसंदी का भी शिकार होते हैं, जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। और इसके अलावा ये दूसरों पर यकीन भी नहीं करते, जिसका पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं इन सब डिसऑर्डर के बारे में सबसे ज्यादा दर्दनाक और पेनफुल बात क्या है? पहली तो ये है, ये बीमारी इंसान की नौजवानी में ही जनरेट होने लग जाती है और इसकी पूरी जिंदगी पर अपना गलबा हासिल कर लेती है, यानी इसकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। और दूसरा ये कि हमारे माशरे में ये अभी भी बीमारी मौजूद है। खास तौर पर दुनिया में अगर किसी शख्स को कोई नफ्सियाती मसला होता है तो पहले उसको पता नहीं होता, और अगर पता लग भी जाए तो दुनिया को बता नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया इसको पागल कहेगी। तो नाज़रीन, ये थी डेंजरस माइंड्स के हवाले से बात। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से ये साइकोलॉजी डिसऑर्डर एक आम इंसान को एक्सट्रीमर बना देता है और लोगों को मिसट्रस्ट करने पर मजबूर कर देता है और फिर क्राइम वाला रास्ता अपनाने पर मजबूर कर देता है। अब दोस्तों, ये बात करते हैं कि 10 केसेस ने क्यों यूनिवर्सिटीज और एयरलाइन को टारगेट किया। इसकी बहुत इंटरेस्टेड वजह यह थी कि इसके मुताबिक जो इंडस्ट्रीज और रेगुलेशन इसने इंसान को मजीद परेशान कर दिया है, इसको कंज्यूमर बना दिया है। इंसान ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा है जिसका कोई एंड ही नहीं लगा। इसको एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें इन सब मवाद को, हम इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर इंसानियत वहां से शुरू होगी जहाँ से इनकी शुरुआत की थी। तो ये थी नाजरीन 10 केसेस की सोच। शायद कुछ लोग इससे एग्री भी करें, लेकिन हमारा ये मसला नहीं है कि 10 केसेस सही था या गलत। हमारा मसला ये है कि हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर मेंटल हेल्थ वाले लोगों से पूछते रहना चाहिए कि दिमागी तौर पर ठीक है या नहीं। इस मॉडर्न दौर में बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन का इलाज को उनसे दोस्ती और उनका यकीन लेना है और उनको डिप्रेशन से दूर करना है। तो नाजरीन, इस वीडियो में आपके लिए टिप ये है कि देखा गया है कि साइकोलॉजिस्ट का मसला उन लोगों में ज्यादा बनता है जिनका बचपन काफी डिस्टर्ब हुआ हो, उनका बचपन में उनका फैमिली एनवायरनमेंट काफी डिस्टर्ब हो। कोशिश करें अपने बच्चों को बेहतरीन बचपन दें ताकि वो इस तरह के मर्ज से दूर रहे और डिप्रेस ना हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और ये नफ्सियाती बीमारियां कैसे होती हैं और उनके क्या क्या रिएक्ट होते हैं। और आखिर में नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारा बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होगी। और देखा गया है चैनल पर व्यूज तो बहुत ज्यादा है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। और आखिर में, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंसान के जिस्म के साथ मरने के बाद क्या होता है तो इस यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है और उसको अमेरिका में क्यों गिरफ्तार किया गया है तो यहाँ पर क्लिक करें। इसी के साथ चाहता हूँ आपसे इजाजत। आपका होस्ट समीउल्लाह, और मिलते हैं अगली वीडियो पर।